کیا اور اب بالکل ان کی جگہ پہ کوئی آئے گا وہ ایک ضدی پرسن کہلاتے تھے، وہ جو السلام علیکم ناظرین، آپ کی میرے سون فائی کا حسین آج حاضر ہوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ آپ لوگوں نے یحییٰ سنوار کے بارے میں سنا ہوگا کہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور وہ کس قدر ایک عظیم رہنما کی جانب سے جانے جاتے تھے اور ان کی بہت ہی رسپیکٹ کی جاتی تھی۔ انہیں ایک شاطر دماغ بھی کہا جاتا تھا، جو کہ بہت ہی ذہین دماغ کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے ہی اسرائیل کے خلاف جو محاذ کھڑا کرنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں ماسٹر مائنڈ جو تھے وہ یحییٰ سنوار تھے۔ تو آج کیا غزہ میں یحییٰ سنوار کی زندگی کے آخری لمحات میں انہیں ہیرو بنا دیا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ کچھ ٹائم پہلے ان کو دہشت گردی کا بھی ماسٹر مائنڈ کہا جاتا تھا، جنہوں نے 22 سال اسرائیل کی جیل میں کاٹے اور وہاں انہوں نے جو سیکھا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس طرح ماسٹر مائنڈ لے کر وہ باہر نکلے اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح اسرائیل کے خلاف بات کرنا سٹارٹ کی، اسی جانب سے دیکھا جائے تو کیا ان کے آخری لمحات غزہ میں ان کو ہیرو بنا کر گئے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کہ لوگ ان کی صرف جو کہہ لیں کہ بدعنوانی ہے ان کو یاد کرتے ہوں گے، یا پھر اس کے علاوہ لوگ جو ہیں ان کو کسی اچھے نام سے بھی یاد کر سکیں گے؟ تو وہ آج ہم جانتے ہیں کہ یحییٰ سنوار کے بارے میں۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 17 اکتوبر کو حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی ہلاکت پر غزہ میں دکھ و تکلیف تھی، تو دوسری طرف اسرائیل میں جشن کا سما نظر آتا تھا۔ سنوار کو اسرائیل پر 7 اکتوبر 2023 کے حملے کا منصوبہ ساز تصور کیا جاتا تھا اور اسرائیلی فوج نے حماس کی دیگر شخصیات کے ساتھ ان کا نام بھی اپنی انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر رکھا تھا۔ گزشتہ جمعرات کو سنوار کی غیر تصدیق شدہ تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی اور ان تصاویر میں انہوں نے زخمی حالت میں زمین پہ لیٹے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی کا کہنا ہے کہ وہ ان ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گیلنٹ اور وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے سنوار کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ بعد میں اسرائیلی فوج نے ڈرون کی مدد سے بنائے گئے ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں اس کے مطابق حماس کے سربراہ کی زندگی کے آخری لمحات دکھائے گئے تھے۔ اس ویڈیو میں ایک شخص کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا اور وہ اپنے اعتراف سے ڈرون کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان جو ڈینیٹل ہگاری نے بھی تصدیق کی کہ سنوار کو رفح شہر میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ حماس نے بھی سنوار کی موت کی تصدیق کر دی۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن خلیل الحیا کا اپنی تقریر میں کہنا تھا کہ سنوار کی تحریک فلسطینی مٹی پر فلسطینی ریاست کے قیام تک جاری رہے گی اور اس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا اور حماس کے دیگر رہنماؤں کا خون ہمیں روشنی دیتا رہے گا۔ انہوں نے یرغمال بنائے گئے اسرائیلیوں کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ قابضین کے یرغمالیوں کو اس وقت تک رہا نہیں کیا جائے گا جب تک غزہ پر جارحیت ختم نہیں ہوگی، اسرائیل کا مکمل انخلا نہیں ہو جاتا اور ہمارے قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے سنوار کی موت میں غزہ کا رد عمل کیا تھا۔ سنوار کی موت پر غزہ میں صدمے کی صورتحال نظر آتی ہے۔ محمد کو شمالی غزہ میں اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور اب وہ الاقصی ہسپتال میں رہتی ہیں۔ انہوں نے BBC سے عربی کو بتایا کہ کچھ دنوں پہلے میں نے خیموں میں لگی آگ کو محسوس کی تھی اور آج پھر یحییٰ سنوار کی موت کی خبر کے سبب اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ غزہ کے ایک اور رہائشی کہتے ہیں کہ سنوار غزہ میں تنازع شروع ہونے کے 1 برس بعد مارے گئے ہیں۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ جس وقت انہیں مارا گیا وہ پوری طرح مسلح تھے اور انہوں نے اسرائیلی فورسز سے مقابلہ بھی کیا۔ وہ کسی انٹیلیجنس آپریشن میں نہیں مارے گئے جیسا کہ اسرائیلی فوج دعویٰ کر رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہم نے ایک پورا پراپر پلان بنایا ہوا تھا جس کی بنا پہ ہم نے یحییٰ سنوار کو مارا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی انٹیلیجنس معاہدہ نہیں تھا، یعنی کہ انٹیلیجنس بیس نہیں کر رہی تھی جس پہ ان کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ کسی عمر نامی غزہ کے ایک اور رہائشی کہتے ہیں کہ ہر اس فلسطینی کی طرح جس نے اپنی زندگی قربان کی ہے غزہ یا غرب اردن میں، ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ جنگ اب ختم ہو جائے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم نارمل زندگی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں تاہم ہمیں کچھ سکھ مل سکے۔ ہم اس جنگ سے اب تھک چکے ہیں، یعنی کہ یہ جنگ اس قدر مزید بڑھتی
नजर आ रही है। साल 1.5 ईयर होने वाला हो गया इस जंग को, लेकिन अभी तक ये जंग थमने की तरफ नहीं आती है, ये जंग रुकने की तरफ नहीं आती है, ये जंग कम होने की तरफ नहीं आती है, ये जंग मजीद बढ़ती चली जा रही है और हमें भी बढ़ती हुई दिखाई देती है इस टाइम। और लोग जो हैं वो इस कदर तक थक चुके हैं, वो चाहते हैं कि हमें भी सुख का टाइम मिल सके, हम इस जंग से दूर कहीं जाकर अपनी पुरानी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता वापस लौट जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि इसराइल ऐसा नहीं चाहता है। इसराइल जो चाहता है वो करके दिखाता है। इसराइल सिर्फ उन लोगों को यरगमाल बनाए बैठा है। अंसर जमाल नामी समाजी सियासी कारकुन सनावर की मौत पर लिखते हैं कि ये वो इख्तिताम नहीं जो नेतन्याहू चाहते थे। नेतन्याहू नहीं चाहते थे कि सनावर किसी हीरो की तरह नजर आए, अपना अस्करी लिबास पहने हुए और रफा में अगले मोर्चों पर काबिज फौजियों के साथ लड़ते हुए। उसके बाद नेतन्याहू नहीं चाहते थे कि सनावर किसी झड़प में अचानक मारे जाएं। वो चाहते थे कि सनावर को मारा जाए और तस्वीर में वो खुद सनावर को मारने का हुक्म देते हुए नजर आए। इनका मजीद कहना था कि नेतन्याहू इन फौजियों का एहतसाब करेंगे जिन्होंने सनावर की तस्वीर लीक की और अब ये तस्वीर फलस्तीनी अफराद के लिए फख्र का जरिया बनेगी। इस हवाले से बेअदुल अव्वल की सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि वो जंग के दौरान रफा में तुक्के में शहीद हुए, ना कि किसी ऑपरेशन में। वो लड़े और फरार नहीं हुए। इनकी गर्दन में खुफिया लिपटा हुआ था और हाथ में बारूद था। उन्होंने माथे और सर पर गोलियां खाई, ना कि पीठ पर या हाथों पर। वो आगे बढ़ते हुए शहीद हुए। यानी कि वो हीरो इस तरह बने कि वो ना तो अपने मैदान को छोड़कर भागे, ना उन्होंने पीठ पीछे गोलियां खाई। उन्होंने जो किया वो फ्रंट से किया। अगर उन्होंने लड़ाई की है, वो शहीद होने की गर्ज से गजा की लड़ाई में उतरे और उन्होंने पूरी कोशिश के साथ जंग लड़ी है और लड़ने के बाद उसमें शहीद हुए हैं, तो वो कोई भाग के नहीं हुए या किसी प्लान के मुताबिक नहीं मारे गए या चुन के नहीं मारे गए, ये शहीद हुए हैं। सबके लिए तोहफा। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर इसराइल से शेयर की गई और मुकामी मीडिया पर नशर की गई वीडियो में इसराइल के लिए शहर किर्यात ब्याली की सड़कों पर लोगों को याह्या सिनवार की मौत का जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। इसराइल में जश्न मनाने वाले कुछ अफराद ने अपने घरों की बालकोनियों में लाउड स्पीकर इसराइल का कौमी तराना लगाया हुआ था और कुछ लोग अपनी कारों का हॉर्न बजा के याह्या की मौत का जश्न मना रहे थे। एक और वीडियो में इसराइली फौज के एहलकारों को सड़कों पर मौजूद ड्राइवर्स को मिठाई खिलाते हुए देखा जा सकता है। यानी कि उनको उसको मार देने का कोई दुख नहीं, कोई कुछ नहीं। इवन के उन लोगों ने एक ऐसे बंदे को मारा है, ऐसे बंदे को शहीद किया है जो कि मास्टरमाइंड था, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि चीजों को समझने वाला था। अगर ये जो रिसेंट कहते हैं कि जो प्लान था इसराइल पर हमला किया गया, इसमें उसका मास्टरमाइंड मौजूद था। लेकिन इसी मास्टरमाइंड को मारने के बाद इसराइलियों को जो खुशी हुई है वो आप लोगों के सामने है। लेकिन जो हमारे पास से चला गया मास्टरमाइंड, हमें उसका मजीद दुख है। हमें उनकी हर चीज से मतलब के होता है कि हमारे अजीम लीडर्स जाते जा रहे हैं जो कि इस जंग का मतलब जानते हैं, इस जंग को लड़ना जानते हैं। आपने कुछ टाइम पहले देखा इस्माइल हनिया की डेथ हुई, उससे पहले इब्राहिमी रईसी चले गए, जो मतलब के इसराइल के खिलाफ नजर आते हैं, इसराइल के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो आए दिन शहीद होते नजर आते हैं। उनकी जगह कोई और ले लेगा? सबसे मेन सवाल ये उठता है कि याह्या सिनवार के बाद क्या उनकी जगह कोई और ले लेगा? ऑब्वियसली लीडर्स रेडी बैठे होते हैं। लीडर्स अब आपके मुल्क को संभालने के लिए किसी न किसी की जरूरत तो होती है। तो ये नहीं होता कि अगर आपके लीडर शहीद कर दिया जाए तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनकी जगह ऑब्वियसली कोई ले सकता है, उनकी जगह पर कोई आ सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो उनकी तरह बनना भी चाहेगा या नहीं, है क्या उसके अपने रूल्स होंगे। तो ये भी देखते हैं। मकबूजिया गर्ब एर्दोगान के शहर रामुल्ला में मराद उमर नामी शख्स ने खबर रसा अदारे रूटर्स को बताया कि सनावर की हिलाकत से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाएगी। इसके बाद गजा में लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचेंगी और इस सबब जंग और तवील। अमरीकी और इसराइली कहते हैं कि सनावर और हमास के बगैर गजा में आज एक नए दिन का आगाज हुआ है, लेकिन ये सिर्फ सियासी नारे हैं। जंग जारी रहेगी और ऐसे नहीं लगता कि कभी ये खत्म भी हो जाएगी। हेब्रोन से कुछ मील फासले पर मकीमुल्लाह अल शमून कहते हैं कि मेरे ख्याल में जब भी कोई मरता है तो इसकी जगह कोई और ले लेता है जो पिछले शख्स से ज्यादा जिद्दी होता है। सनावर एक जिद्दी शख्स है और हमें उम्मीद है कि इनकी जगह भी कोई उनके जैसा ही शख्स
या फिर उनसे ज्यादा जिद्दी शख्स लेगा। लाशें गिरती हैं, नजरियात नहीं। उर्दान की सरहद इसराइल से मिलती है और इसके दारुल हुकूमत ओमान में हजारों अफराद याहिया सनावर की मौत की मजम्मत करने और हमास से यकजहती का इजहार करने के लिए सड़कों पर निकल आए थे। एक एहतजाज करने वाले शख्स ने BBC अरबी को बताया कि सनावर और मजामत नजरियात का नाम है। एक नजरिया कभी मरता नहीं, लाशें गिरती हैं, नजरियात नहीं मिटते। इनके मुताबिक सनावर की मौत से सूरत हाल मजीद खराब ही हो गई। जुम्मे की सुबह इसराइल के मुकामी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने एक बयान में कहा था कि इरदान की तरफ से इसराइल में दरिंदगी की कोशिशें की गई थी और इस वाक़ये में 2 फौजी एहलकार भी जख्मी हुए थे। उर्दान की फौज ने इस मामले में जारी एक बयान में कहा कि मीडिया में चलने वाले इतलात में कोई सदाकत नहीं, जिनमें कहा गया है कि उर्दान के फौज ने मगरबी सरहद अबूर की है। उसके बाद देखा जाए तो इराक और मिस्र में सनावर की मौत का रद्द अमल क्या था। इराक में इस्माइल हानिया की मौत पर भी एहतजाजी मुजाहरे हुए थे, लेकिन सनावर की मौत के बाद जो मुजाहरे यहाँ हुए वो माजी के मुकाबले में काफी बड़े थे। इराक रुकनी पार्लियामेंट रईसी अल मालकी ने कहा कि सनावर की मौत का मंजर उतना ही तकलीफ, उनकी मौत उतनी ही तकलीफ दे है जितनी लाखों फलस्तीनियों की अमवात और हजारों भूखे अफराद की नकल मकानी। इराक सहाफी बिलगर अहमदुल शेख माजिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि सनावर ने वो जिंदगी गुजारी है जिसका वजूद सिर्फ शायरी में ही नजर आता है। इराक में मौजूद हम सब जानते हैं कि उस सब की वजह क्या है और हम ब्लैक मेल्स और शेरों में फर्क भी जानते हैं। मिस्र में वाक़िया जामिया अल ज़हर में सनवार का नाम लिए बगैर उनकी मौत को फलस्तीनी मज़ामत में हीरो की शहादत करार दिया। एक्स पर जारी एक बयान में जामिया अल ज़हर का कहना था कि नौजवानों के ज़हनों में फलस्तीनी मज़ामत का निशाना समझे जाने वाले अफराद की साकित को मसब करने की कोशिश को नाकाम बना रहा है। बयान में मजीद कहा गया कि इसको दहशतगर्दी ना करार दिया जाए बल्कि मज़म्मत अपनी सरजमीन का दिफा करना और मर जाना और एक ऐसे रुतबे हैं जिसकी बराबरी मुमकिन नहीं। मिस्री सियासतदान और साबिक सदारती उम्मीदवारों हमदीन सहाबी ने सनवार की मौत के बाद एक तकरीब में शिरकत की और कहा, आप हीरो की तरह जिए और शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। आप गजा के दीगर लोगों की तरह किसी हीरो की तरह शहीद हुए। आप किसी निडल में नहीं छुपे, कैदियों के पास पनाह नहीं ली, बल्कि जबकि आपका दुश्मन से सामना हुआ तो आप अपने साथियों के साथ उनका मुकाबला कर रहे थे। मिस्री अखबार के साबिक एडिटर इन चीफ अब्दुल अजीम हमाद ने हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा और लिखा, हमें ये समझने की जरूरत है कि इसराइल मज़म्मत के तमाम मराकज़ को खत्म करना चाहता है ताकि खिते में इसराइल की बिलादस्ती की राह हमवार रहे। उसके बाद देखा जाए वो हीरो बन चुके हैं। उनका जो बायोडेटा है, बायोग्राफी है, वो सबके पास मौजूद है। ये नहीं है कि इसराइल ने अगर उनको मार दिया तो वो पीछे हट गए थे, वो इसराइल के किसी इंटेलिजेंस के बिहाफ पे मारे गए, ऐसा नहीं है। वो लड़ते हुए शहीद हुए हैं और उन्होंने इसराइल का डट कर सामना करने की कोशिश की है और अब बिल्कुल उनकी जगह पे कोई आएगा वो एक जिद्दी पर्सन कहलाते थे। वो जो ठान लेते थे वो करके दिखाते थे, वो जो सोच लेते थे वो अपनी सोच पे इम्प्लीमेंट करते हुए दिखते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब सोचते हैं करते कुछ नहीं है, दिखते नहीं है, नजर नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो नजर भी आते थे, वो करते हुए भी दिखते थे और जो वो सोचते थे वो तो वो डेफिनेटली करते हुए दिखाई देते थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।